Okay, first of all, very good morning to all of you, and welcome back to our classes Learn English with Sneh. And today we are going to discuss the mock test for which was held on 4th July 2019 for CHSL 2018. Okay, it was for third shift of 4th July. ये जो एग्जाम है ये CHSL की 4th जुलाई 2019 को हेल्ड हुआ था बच्चों, और ये एग्जाम लिया गया था 2018 वाला एग्जाम, ठीक है, जो कि 2019 में हुआ था। समझ आ गया सबको? चलिए, so let's get started with the first question. And the first question which is in front of you, it is related to parajumbles. That means parajumbles ka question hai. Everybody who has not attempted this question, quickly you can reattempt this question. Chaliye, given below are four jumbled sentences. Out of the four, this is instruction part. They had come from different parts of city. That means we are talking about some people. Okay, next you have given man, tall, skinny. Okay, man जो कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, स्किनी होते हैं, शॉर्ट एंड फैट, गैदर्ड इन दुबई. ओके, तो ये जो शॉर्ट एंड फैट जो होते हैं, दोज आर गैदर्ड इन दुबई. ओके, अब यहाँ पे उनकी क्वालिटी बताई गई, किस तरह के वो मैन होते हैं, किस तरह की उनकी अपीयरेंस होती है. नेक्स्ट यू हैव गिवन दे वर ऑल नेम्ड मोहम्मद. ओके, और उन सबको किस नेम से बुलाया जाता है? मोहम्मद के नाम से. बट ऑल ऑफ देम हैड वन थिंग इन कॉमन. उन सबके अंदर एक चीज कॉमन होती है. ओके, दीज फोर सेंटेंसेस यू हैव गिवन गाइस. ओके, अब कैसे करना है देखते हैं. ओके, आपको दिया गया है फर्स्ट पार्ट BADC, BDAC and four options you have given. Just think about it, where to start this question. We can't start with A because here we have given they से हमें पता होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं. In the second sentence you are talking about some man, so you can start with the second one. थर्ड में भी आपको दे से स्टार्ट किया है, बट में आपको एक कॉन्ट्रास्ट वाले स्टेटमेंट दिए, बट ऑलवेज शोज अ कॉन्ट्रास्ट इन द स्टेटमेंट, राइट? समझ में आ गया है? चलिए, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? बी से स्टार्ट करेंगे. एंड इफ वी स्टार्ट विद बी, सो बी सेंटेंस इज मैन टॉल एंड स्किनी शॉर्ट एंड फैट गैदर्ड इन दुबई. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, बट ऑल ऑफ देम हैड वन थिंग इन कॉमन. ओके, मैन के बारे में बात की, फिर हम कहेंगे कि उन सब में एक चीज कॉमन होती है. क्या चीज कॉमन होती है बताओ जल्दी से, क्या चीज कॉमन होती है? क्विकली डू आंसर्स. यस यस यस, कि वो जो लोग होते हैं वो सारे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से आते हैं, बोल सकते हैं. ओके, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से आते हैं और उन्हें सबको क्या बुलाया जाता है? उन्हें मोहम्मद बुलाया जाता है. BADC should be there or BDAC should be there? Quickly do answers. BADC should be there. Students, यहाँ पे बोला गया है लोगों के बारे में, man tall and skinny, fat gathered in Dubai. They had come from different parts of the city, but वो अलग अलग सिटी से आते हैं, बट उन सब में एक चीज कॉमन होती है. व्हाट इज द कॉमन पार्ट? उन सबको मोहम्मद बुलाया जाता है. BADC इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई डोंट रिमेम्बर स्टिल कि वो आपके मॉक टेस्ट में मैंने क्या आंसर लगा दिया था इसका, बाई मिस्टेकन हो गया होगा. ओके, because I always created your mock test in the night, okay, in late nights. Chale, next question pe. Next question that you have given is related to error detection, I think. Yes, students, do answer for this question quickly. I'm not asking about the part, I'm asking about the exact error. Okay, yes Sneha. Somebody had said had. Okay, Jyoti Khanagwal. The ambulance have arrived on time. The accident victim was taken to the hospital. बहुत अच्छे. There should be had, students, because your complete sentence is in the past tense. They're not in, there is no use of have or has. उसने बोला है क्या? The ambulance had arrived on time. एम्बुलेंस जो है टाइम पे पहुंच चुकी थी. एंड द एक्सीडेंट विक्टिम वाज, मतलब पहले क्या हुआ होगा? पहुंच चुकी थी. एक्सीडेंट विक्टिम को कहाँ ले जाया गया? हॉस्पिटल ले जाया गया. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव गिवन इज
related to, again the error detection question is there. The principal requested to the chief guest to inaugurate the sports meet. Quickly do answer for this question. C, in C, what answer should be there? I'm asking about the exact answer. Remove two. Okay, बहुत अच्छे ज्योति, देयर शुड बी रिमूव टू. अगर रिमूव टू करेंगे तो टू द चीफ गेस्ट नहीं होगा. आई ऑलवेज टोल्ड यू व्हेनेवर यू हैव गिवन रिक्वेस्ट, वॉयलेट, comprise, okay, all these verbs are given. Never use any other preposition after these verbs. Okay, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट किससे की जा रही है, वो ऑलरेडी दिया है पर्सन, तो आप क्या कहेंगे? द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द चीफ गेस्ट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, yes or no students? Okay, next question again you have given is related to parajumbles. Okay, quickly do answer for this parajumble. Okay, students, you are going with option number DCBA. Okay, and some of you are in the favor of DACB. Okay, let's come to the same question, students. Don't worry. Uh, we start with what? We start with D. Okay, and because in the D sentence we have given a person. Okay, आपको क्या दिया गया है? एक person दिया गया है, नाम है, उसके बारे में हम बात करें. चलो फर्स्ट से चलते हैं. फर्स्ट में लिखा है प्रैक्टिसिंग हार्ड शी हॉप्ड टू विन. ओके, शी की बात की है, प्रैक्टिस करते हुए शी हॉप टू विन. उसने क्या हॉप की कि वो कभी किसी दिन ओलंपिक मेडल लेकर के आएगी. समझ में आ गया? ओलंपिक में जीतने का उसने होप रखा. तो यहाँ पे उसने होप रखा, किसने रखा? जस्ट फाइंड द पर्सन. ओके, उस लड़की को ढूंढो. वो लड़की नेक्स्ट में भी नहीं दिया गया. नेक्स्ट में भी आपको शी स्पैट डाउन द स्लॉप, she had a terrible accident. Okay, again यहाँ पे स्पीड डाउन होना चाहिए, स्पैट डाउन इट इज ऑल्सो करेक्ट, सही है. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा. अगेन यू हैव गिवन अ पर्सन शी को फिर से ढूंढो. थर्ड में भी वही चीज है, बट शी डिडंट नो, फिर से वही चीज है. सो एन थॉम्सन वाज गोइंग टू मेक हर प्रैक्टिस स्काई रन बिफोर लंच. ओके, वो क्या करने जा रही थी? प्रैक्टिस करने जा रही थी. ओके, उसकी प्रैक्टिस के पार्ट के बारे में बताया गया है. तो डी वुड बी द राइट सेंटेंस एट फर्स्ट. डी के बाद हम क्या करेंगे? लंच करने जा रही थी और प्रैक्टिस करते टाइम उसने ये, उसके दिमाग में ये चीज आई. ओके, तो हम क्या करेंगे? डी के बाद हम कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, किसको? ए को कनेक्ट करेंगे. दिस इज द राइट सेंटेंस. समझ आ गया? और ऐसा करते टाइम क्या हुआ? उसका एकदम से अच्छा, उसका एक्सीडेंट हुआ, बट एक्सीडेंट से पहले क्या बताया जा रहा है? बट शी डिडंट नो इट वुड बी हर लास्ट रन ओवर. ओके, कि लास्ट रन ओवर, कि उसको ये पता चला कि ये उसका लास्ट दिन होगा. वो नहीं जानती थी ये चीज. ओके, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी, देन आफ्टर ए, देन आफ्टर सी, एंड देन आफ्टर बी. समझ आ गया सबको? डी ए सी बी इज राइट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. लोकेश, आपको समझ में आ रहा है? What happened to this सिस्टम को? क्या हो जाता है यार कभी कभी. Students, just wait a minute. समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग. wrongly spelled. Okay, which word is wrongly spelled? कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि wrongly spelled किया गया है यहाँ पे? Somebody had said elementary. Absolutely correct. There should be elementary. Okay, absolutely correct बच्चों. बहुत अच्छे. एलिमेंट्री इज द राइट आंसर. मिजनरी आपको पता ही है, ज्वेलरी भी आपको पता है. हेरिडेटरी जो हमारे पेरेंट्स से या जो हमारे पूर्वज से जो कैरेक्टर्स या जो फीचर्स हमें मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिडेटरी. ओके,
कहाँ तक कर चुके हैं हम लोग? ये हो गया है, ये भी हो गया है. Okay, come to the next point, students. Next is related to sentence improvement. Okay, the question that you have given is of Rama and Usha, he later is the most responsible. देखो जब दो में से किसी की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, व्हेन ऑफ द टू का केस आए, देखो यहाँ रमा एंड उषा, दिस टू दे पीपल आर टू पर्सन्स, राइट. ये दोनों दो लोग हैं. तो ऑफ द टू लिखा हुआ मिल जाए या फिर ऑफ के बाद आपको दो पर्सन्स में से बात की जा रही हो, तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज यूज कंपैरेटिव डिग्री इन द सेंटेंस. लेटर एब्सोल्युटली करेक्ट स्नेहा. देखते हैं, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है. यहाँ पे लेटर जो है वो टाइम के लिए यूज किया जाएगा. इवन अगर हम बात करें लेटर की, तो लेटर का मतलब तो बाद में होता है. बट हियर यू व्हाट यू नीड टू डू, ओके, यहाँ पे आपको लेटर चाहिए, LATTER फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड द सेकेंड थिंग इज, लेटर द मोस्ट करोगे, लेटर इज मोस्ट करोगे, लेटर इज द मोस्ट मोर करोगे, या क्या आंसर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? लेटर इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. बट उसके बाद का क्या, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट होना चाहिए? फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन और द लास्ट वन? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा. कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो अगर आप, तो आप कौन सी डिग्री का यूज करोगे? जस्ट थिंक अबाउट इट, दैट्स इट, नथिंग एल्स. ऑप्शन नंबर ए को रिमूव कर दो बच्चों. ऑप्शन नंबर ए को इसलिए हम लोगों ने रिमूव किया है, द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज वी हैव गिवन LATER. समझ आ गया? ऑप्शन नंबर 4 को भी रिमूव कर दो, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में जो क्वेश्चन में आपको दिया, दैट इज ऑल्सो LATER. and if I come to rest two options B and C, so there is the latter is the more is the right answer for this question, the B1. okay, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में आपको the latter is most किया हुआ है, and we always use superlative degree when we are comparing one person to all. okay, जब आप एक को सबसे कंपेयर करते हो उस टाइम आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करोगे. दोनों ही कंपैरेटिव होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे B is the right answer for this question. Have you got this question, everybody? Quickly do answers. Jyoti, Sneha and others. Lokesh. Clear बच्चों? बहुत अच्छे, thank you. Next question is related to idiom. okay, to grease the palm, what does it mean to grease the palm? She is saying B is the right answer, to bribe someone. Absolutely correct बच्चों. मैंने आपको ये इस तरह से याद करवाया हुआ है. इस तरह से करके जब हम करते हैं तो कैसे याद रखेंगे? आप ग्रीस कर रहे हो, पैसा आने वाला है ना, तो दैट मीन्स रिश्वत लेना. ओके, तो टू ब्राइब समवन, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलिए. The next question that you have given is the eighth one. Eighth one, and that you have given is select the most appropriate indirect direct. okay, direct indirect आपको बताना है. क्विकली डू आंसर्स. अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करने की कोशिश करें सब लोग. yes, quickly do answer for this question. Question number 8. नो, WH के साथ दैट का यूज नहीं होगा. बिल्कुल सही बोल रहे हो. तो सोचो आंसर क्या होगा. यस स्नेहा, एब्सोल्युटली करेक्ट. यस, वेरी गुड. चलिए, सबने आंसर करेक्ट किया. फिर भी एक बार देख लो क्वेश्चन को. ओके, क्वेश्चन में आपको दिया गया द लॉयर सेड टू बी एक्यूज्ड. आपको बस इतना समझना है किसको बोला गया है. एक्यूज को बोला गया है. किसने कहा है? लॉयर ने कहा है. दैट्स इट. एंड योर क्वेश्चन इज योर रिपोर्टेड स्पीच इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव की अगर बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव में आपको अच्छे से पता है, इधर वी हैव गिवन WH वर्ड इन द बिगनिंग और यू हैव गिवन हेल्पिंग वर्ब इन द बिगनिंग. समझ आ गया सबको? तो इंटेरोगेशन में आप आस्क्ड का यूज करते हो, आप इंटेरोगेटेड का यूज करते हो, क्वेश्चन का यूज करते हो, इंक्वायर्ड का यूज करते हो. सो यू कैन यूज एनी ऑफ देम. ओके, तो द लॉयर आस्क्ड द बर्गलर.
Is it clear to everyone? Then after you need to place WH word as it is. Okay, आपको चेंज नहीं करना है, where as it is place होगा तो ऑप्शंस को रिमूव करते हैं स्टूडेंट्स. एलिमिनेशन मेथड को आपको ध्यान रखना है. ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर टोटली इरेलीवेंट, क्योंकि एक दैट दिया गया है बीच में और एक में इफ दिया गया है, तो दोनों को क्रॉस कर दो. समझ आ गया? नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन दैट यू हैव गिवन, आपको अच्छे से पता है बच्चों की रिपोर्टेड स्पीच में कैसा भी सेंटेंस आ जाए, एवरी सेंटेंस वुड बी कन्वर्टेड इनटू द सिंपल सेंटेंस, दैट मींस एन असर्टिव वन. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए डब्ल्यूएच वर्ड के बाद, देन आफ्टर आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वर्ब जो भी आपका गिवन है और एक्स्ट्रा पार्ट. So where as it is होगा, then after you have given you. Okay, you would be the subject, but we are talking about accused, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा accused है, तो accused के लिए क्या यूज करेंगे? he यूज करेंगे. एंड सिंपल पास दिया है were you, तो there should be was, you was, सॉरी he was. समझ में आ गया? you को कन्वर्ट किया accused के अकॉर्डिंग he में, he के अकॉर्डिंग सिंपल पास में क्या यूज करोगे? ही के अकॉर्डिंग सिंपल पास्ट में क्या यूज होना चाहिए? वॉज शुड बी देयर एट द टाइम ऑफ बर्गलरी. समझ आ गया? वेयर ही वॉज एट द टाइम ऑफ बर्गलरी. वेरी गुड, बहुत अच्छे. ओह माय गॉड. नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा सब लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ का ए. ओके, यू आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर ए. चलो देखते हैं. पैसिव आपको बनाना है स्टूडेंट्स. यू पेड योर आउटस्टैंडिंग बिल. हैव यू पेड योर आउटस्टैंडिंग बिल्स? हैव अगर आपको दिया है, have आपको दिया है, that means your sentence is what? Sentence is in present perfect tense. In case of present perfect, we always what we need to do, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बीन लगाना होता है. बस आपको यही चीज ध्यान रखना है और इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है. आपको बीन कनेक्ट करना है, दैट्स इट. यहाँ पे आप क्या करेंगे? यू आर टॉकिंग अबाउट योर बिल्स, तो आपका ऑब्जेक्ट योर आउटस्टैंडिंग बिल्स है. ओके, तो आप क्या करेंगे? बिल्स प्लूरल है इसलिए हैव ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होता है बच्चों. तो हैव योर आउटस्टैंडिंग बिल्स. उसके बाद क्या यूज करना है? मेन वर्ब पेड है, पेड से पहले बीन का यूज करेंगे, एज वी नो दैट. तो बीन पेड, राइट. बाय यू क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि वो बिल्स उसी के थे. ओके, सो देयर इज नो नीड टू प्लेस बाय यू, बिकॉज अपने बिल्स आप खुद ही पे करोगे ना. अंडरस्टूड है? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो. अब क्विकली आंसर्स करने हैं आपने ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल खुद का. ओके, नेक्स्ट यू हैव गिवन सेलेक्ट द wrongly spelt again. Quickly do answer for the wrongly spelt. Very good, Jyoti. Competition is the right answer. COMPETITION. This is a correct spelling for competition. Destruction correct है. Destruction मतलब तहस नहस करना. Okay, next क्या दिया है? ये construction था. Okay, anyways, repetition भी correct है. नेक्स्ट का आंसर करें क्विकली. 11th वन का, that was my mistake. 11th वन में आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करना है स्टूडेंट्स. ओके, आई जस्ट वांट टू नो व्हाई वी नीड टू प्लेस वेदर ओनली. व्हाई कांट वी गो फॉर क्लाइमेट? व्हाई कांट वी गो फॉर एटमॉस्फेयर? ओके, आपने वेदर को ही क्यों चूज किया यहाँ पे? नो, दिस इज नॉट WHETHER, दिस इज WEATHER. दिस इज मौसम वाला वेदर. समझ आ रहा है? मौसम वाला वेदर है बच्चों ये. बहुत अच्छे. क्लाइमेट मीन्स जलवायु. ओके, वेरी गुड. देखो, एनवायरमेंट और एटमोसफियर को तो आप डायरेक्टली रिमूव कर दो यहाँ से. एटमोसफियर इज योर सराउंडिंग, एनवायरमेंट इज ऑल्सो यू नो योर, किस एनवायरमेंट में हो आप, मतलब वहाँ का एनवायरमेंट क्या है. क्लाइमेट हो जाएगा जलवायु. लाइक अगर हम जाते हैं यू नो अपने
वर्ल्ड के ऊपर वाले एरियाज में, दोज आर वेरी कोल्ड क्लाइमेट इज देयर। ओके, अगर हम गुजरात साइड में दाएं जाएंगे तो बहुत ही हॉट क्लाइमेट है वहां पे, इक्वेटर के पास बहुत ही हॉट क्लाइमेट होगा। तो क्लाइमेट इज अ जनरल जो यूजुअली रहता है, बट वेदर ऑलवेज चेंजेस। ओके, वेदर हमेशा चेंज होता रहता है। तो शिप्स का इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि शिप चलेंगे ही नहीं। शिप किस पे डिपेंड करते हैं? शिप्स का चलना क्लाइमेट पे नहीं करके वेदर पे डिपेंड करेंगे। मौसम अगर अच्छा है तो उनको भेजा जाएगा, अगर मौसम अच्छा नहीं है तो उन्हें डेफर कर दिया जाएगा, दैट मीन्स उन्हें प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया जाएगा कि नहीं, आज नहीं भेजना है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली वेदर। I hope this is clear to everyone. Next you have given is the 12th one. uh, here you have given a word dispersed. Okay, disperse का आपको क्या बताना है? एंटेनिम बताना है। डिस्पर्स मतलब बिखरा हुआ, मतलब कि फैला हुआ आप बोल सकते हो। स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है, थिन बिल्कुल नहीं होगा, वीक बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डिस्पर्स के सिनोनिम्स हो जाएंगे ये। और स्ट्रॉन्ग इज टोटली डिफरेंट वर्ड। डेंस इज अ राइट आंसर। यस, डिस्पर्स का मतलब फैला हुआ, स्प्रेड होता है, लेकिन हम डेंस करेंगे दैट मीन्स थिक, समथिंग गहरा, समथिंग जो बिल्कुल इकट्ठा हो रखा है, दैट इज कॉल्ड डेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्टूडेंट्स, क्विकली डू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे जो स्टैम्प कलेक्ट करता है? बहुत अच्छे। फिलाटेलिस्ट इज द पर्टिकुलर पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स। व्हाट डज द मीन ऑफ फोनोलॉजिस्ट? क्विकली डू आंसर फॉर फोनोलॉजिस्ट। फोनोलॉजिस्ट का आंसर करें, आई गो टू अंडरस्टैंड। यस, जल्दी से आंसर करें बच्चों, फोनोलॉजिस्ट इज व्हाट? वेटिंग फॉर योर responses. What happened? देखो, फोनोलॉजी लिखा है, दैट मीन्स रिलेटेड टू साउंड्स। स्वर ध्वनि होती है ना, स्वर ध्वनि, स्वर पता है ना सबको, उसकी स्टडी इज फोनोलॉजिस्ट। उसकी स्टडी करने वाले को जो स्वर का उच्चारण का ध्यान रखता है, ठीक है, कि साउंड्स को कैसे बोला जाए, तो दैट इज कॉल्ड फोनोलॉजिस्ट। ओके, फिलेंथ्रोपिस्ट आपको समझ में आ गया होगा। हु लव्स मैनकाइंड इज नॉन एज स्टडी ऑफ साउंड्स बोल सकते हो, इज फोनोलॉजी। ओके, फिलेंथ्रोपिस्ट हु लव्स व्हाट? हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता से प्यार करे, दैट इज कॉल्ड philanthropist. Philatelist, I think आपको समझ आ गया है। And the next word is पैनर्सिस। ओके, पैनर्सी का मीनिंग क्या होगा भाई? जल्दी से आंसर करें। जो इंसान बहुत ही अच्छा स्पीच देता है ना, द पर्सन हु इज एन ऑरेटर, ओके, हु नोज हाउ टू स्पीच, हाउ टू डिलीवर अ स्पीच। ओके, तो जिसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो, आर्टिकुलेट आपने सुना है ना, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट इज अ काइंड ऑफ पैनर्सिस्ट। समझ में आ गया है? लाइक नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल। ओके, समझ, सभी वर्ड्स क्लियर हैं? नाउ एवरीबडी कम टू दिस क्लोज सेट्स, इट्स वेरी वेरी सिंपल। लिखा, Tanzine and Hillary have done it. Mountain Everest has been conquered. Okay, उसको जीत लिया गया। Okay, this news evoked dash reactions. Okay, इस न्यूज का आगे बताइएगा क्या हुआ। ये जो न्यूज मिली कि उस माउंटेन को जीत लिया गया, तो क्या, किस तरह का न्यूज था, इसके रिएक्शंस किस तरीके से? दोज आर इंटरेस्टिंग रिएक्शंस। इवॉक करना मतलब निकल करके आए, इवॉक हुए। ओके, सी इज द राइट आंसर। इंट्रूड का मतलब होता है बच्चों, इंट्रूजन मीन्स अटैक, इट्स अ काइंड ऑफ इंट्रूजन, इंटरप्शन, अटैक। ओके, intimate is very simple, that means to close someone. And the last inspired, you got you घुसपैठ। yes, intrude means घुसपैठ, बिल्कुल बोल सकते हो। So right answer for this question is interesting. Now quickly everybody come to the next question. Next you have given reactions के बाद read करना start करो। Somehow there was a sense of disappointment. Disappointment की बात कर रहे हैं किस चीज पे? At the fact that great mountain had been, whatever it is,
Okay, at the fact, disappointment at the fact. Okay, so right answer for this question is at. Disappointment के साथ आप at का use करोगे क्योंकि उस fact की बात की जा रही है. Next you have given had been what? That the great mountain had been dash, it would have been nice to dash. Had been conquered, बहुत अच्छे कि उसे जीत लिया गया. Very good. Okay, next read करो students. Have been conquered, after that you have given it would have been nice to dash the Everest, as in dash part of the earth. Have left is correct. Okay, have left is correct. नाइस टू के बाद आप वी1 का यूज करोगे. वी1 अगर देखा जाए तो बी लिविंग है या फिर आपको दिया गया हैव लेफ्ट. बी लिविंग का कोई सेंस नहीं बनता है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं कर रहे हो. तो परफेक्ट आना चाहिए. तो परफेक्ट के केसेस में आप परफेक्ट नहीं, बेसिकली इट इज नॉट एग्जैक्टली अ परफेक्ट, इट्स यू नो सिंपल टेंस. आपको इन्फिनेटिव के केसेस में दिया गया टू हैव लेफ्ट द एवरेस्ट एज एन डैश पार्ट ऑफ द अर्थ. डैश पार्ट में क्या करेंगे? जहां पर अभी तक किसी ने जहां पर अभी तक कोई अटैक नहीं कर पाया, जहां तक अभी कोई पहुंच नहीं पाया. सो राइट आंसर इज अनअसेलेबल. ओके, अनअसेलेबल का मतलब अनेबल टू अटैक देयर. ओके, अनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल, बहुत अच्छे, जहां तक पहुंच नहीं कर पाया कोई. समझ आ गया है यहाँ तक सबको? अनरूली आपको अच्छे से पता. अनयूजुअल दैट मीन्स समथिंग विच इज एबेरेंट, विच इज अनकॉमन. अनअवेल का मतलब जो उपलब्ध नहीं है. And unruly, which is not according to the rule. Next question that you have given is opportune. Quickly do answers because we have given only 7 minutes. Okay, opportune is somewhere related to timely, बहुत अच्छे, which is favorable, you can say, which is advantageous, जो आपके फेवरेबल में हो, जो आपके अकॉर्डिंग हो. Okay, so that is called opportune. Rarely can't be the answer. Rarely, barely were same. Okay, likely is possibly, which is different word. Okay, next you have given one who is charge of a museum or art gallery. जिसके पास एक म्यूजियम का और आर्ट गैलरी का चार्ज होता है, that is called what? That is called curator. Okay, समझ आ गया है? चलिए, next question that you have given is what? It is related to again antonym. बच्चों इस क्वेश्चन को छोड़ दो. इस क्वेश्चन में उन्होंने क्वेश्चन बेसिकली वर्ड नहीं दिया था. Okay, just skip this question, don't worry. नेक्स्ट वन पे पहुंचेगा. नेक्स्ट यू हैव गिवन इज रिलेटेड टू वन वर्ड, सो नॉट, इट्स रिलेटेड टू sentence improvement. By next week I will have been made all the reservations for the trip to Europe. Will have made should be there because the sentence is not in passive voice. Okay, in case of passive voice we use been, so there should be I will have made only. Okay, remove been. Exactly, समझ आ गया है? तो सिंपल बोल रहा है कि अगले हफ्ते से, ओके, आई विल हैव मेड ऑल द रिजर्वेशंस फॉर द ट्रिप. मैं सारे रिजर्वेशंस करवाऊंगा यूरोप के लिए जो उस ट्रिप के लिए रिक्वायर्ड है. ओके, तो विल हैव मेड, सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. पैथेटिक का मीनिंग क्या होगा? पैथेटिक मीन्स समथिंग मिजरेबल. आपसे सिनोनिम पूछा गया है तो पैथेटिक का मतलब कुछ दयनीय, बहुत ही गंदी कंडीशन जो होती है ना, दैट इज कॉल्ड बहुत ही, जिसमें सबको दया आ जाए, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन आप बोल सकते हो. दैट इज पिटीफुल. एब्सोल्युटली करेक्ट. Okay, merciful you can also say. So right answer for this question is D, that is pitiful. Okay, next you have given to bark up the wrong tree. Plenty means in the huge. Okay, in a huge amount. Plenty is प्रचुर मात्रा में. समझ में आ गया लोकेश? पर्पसफुल बच्चे आपको समझ में आ गया होगा. पावरफुल इज वेरी करेक्ट. नेक्स्ट वन इज टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री. बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मीनिंग बताइए जल्दी से सब लोग. बहुत अच्छे. देखो, जब भी इडियम देखते हो ना तो इडियम के आंसर्स कभी भी डायरेक्ट नहीं होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डू रिमेंबर दिस थिंग. सबसे पहले तो ये क्या लिखा है? टू एट एन अनपैलेटेबल फ्रूट बाय मिस्टेक. जस्ट रिमूव दिस ऑप्शन. टू बी मिस्टेकन अबाउट द नेम ऑफ द ट्री. इट डजंट टॉक अबाउट ट्री. ऑप्शन नंबर सी को रिमूव कर दो, डी को रिमूव कर दो. बी देखो कितना वाहियात ऑप्शन इन्हें दिया है. टू बरी मनी अंडर अ ट्री. व्हाट डज इट मीन? कि आप पैसा गाड़ रहे हो ट्री के नीचे. टोटली इररिलेवेंट. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग. ओके,
टू बी रॉन्ग अबाउट द, कहते हैं ना टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ओके, इसका मतलब एक और होता है बच्चों, मतलब किस सेंस में यूज किया जाता है कि मतलब जिसको आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए आप उसे अप्रोच कर रहे हो, इसका ये भी रीजन है। समझ में आ गया? क्लियर है? The right on answer is A. The last question that you have given is 25th one. Fill in the blank with the most appropriate word. The archaeologist made a dash discovery. क्या होना चाहिए? सेंसेशनल। देखो सेंसिबल नहीं होगा, हम वाइज सेंसिटिव की बात नहीं कर रहे हैं। डिस्कवरी कांट बी सेंसिटिव, डिस्कवरी कांट बी सेंसिबल। सेनाइल वी यूज फॉर द ओल्ड पर्सन। ओके, सेनाइल किसके लिए यूज करेंगे? जो ओल्ड होते हैं, ओल्ड इज पीपल होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेनाइल। सो राइट आंसर इज सेंसेशनल डिस्कवरी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एवरीवन कम बैक, आई एम गोइंग टू स्टॉप स्क्रीन। चलिए, एंड स्टूडेंट्स नाउ एवरीवन क्विकली, चलो देखते हैं, ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। By the next Saturday, I'll take your test offline. आपके टेस्ट मैं ऑफलाइन लूंगी। टेस्ट ऐसा ही होगा बट आप मेरे सामने बैठ कर दोगे इंस्टीट्यूट में, क्लासेस में। समझ आ गया सबको? ओके, आपको घर पे टेस्ट नहीं दिया जाएगा। Those who are not here, like Sneha is not there, she's in Udaipur, so she won't be able to come here. Okay, Ishpender is not there, she's in Bhopal, and one other person, I think Sahil is also not there. Okay, so I'll send the mock test to these people, but those who are in Gurugram, come here to the institute and just continue. Okay, so by next Saturday, come to us. Okay, come to the institute and just attempt your test. समझ आ गया सबको? तो by next Saturday you have to come to me. Done? चलिए, thank you very much. And for today, I think it is sufficient. We will meet in the evening session at 9 p.m. Okay, thank you very much, बच्चों. Let's meet in the night session. Okay. Yes, Jyoti, you can ask your doubt. What happened? Tell me. Quickly write down your doubt, Jyoti. 8th May. 8th May what? 8th May. That means you are asking about the question. Just wait a minute. I need to go to the question. Question number 8. What happened to this? I'm going to share my screen. You are talking about question number 8. Yes, Jyoti, tell me what doubt you have in this question. What kind of doubt you have? बेटा सिंपल पास्ट था, सिंपल पास्ट में क्या करोगे? ए ऑप्शन इज करेक्ट. यस ज्योति, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी. इट्स वेरी सिंपल. लोकेश ओके, देखा नहीं बच्चे मैंने. चलो बाकी के डाउट्स जो हैं आई टेक ऑल द डाउट्स ऑन सैटरडे, डोंट वरी. ठीक है, कुछ बाकी बच्चों के भी काफी सारे डाउट्स आए हुए हैं. आई डिस्कस ऑल द डाउट्स ऑन सैटरडे. सैटरडे के लिए कलेक्ट करके रखा करो जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन and send it to me. I'll compile all those questions in a PDF. Okay, and then after we will discuss about all those doubts. Done? ठीक है, चलिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रिपरेशन करते रहो. कल का सेशन का क्या हुआ, कैसा लगा आपको कल का सेशन? सर ने काफी कुछ आपको बताया. लास्ट में लोकेश नहीं थे वहां पे, कुछ कुछ बच्चे जा चुके थे. उनसे आपको ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए. इफ 40+ एज पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इफ ही गेट सेलेक्टेड, ही गॉट सेलेक्टेड इन 6 months, सो व्हाई यू कांट यू? अगर वो बहुत ही इंस्पायरिंग था, सीरियसली उनकी एज को देखते हुए आपको ये सोचना चाहिए था, अगर वो बंदा 6 months में सिलेक्शन ले सकता है इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सो व्हाई कांट यू गाइज? आप भी कर सकते हो. उन्होंने कहा ना, एक जीए की मैगजीन को, या फिर वो जीए में जो भी पढ़ते थे, ओके, ही रिकॉल्ड एवरीथिंग एटलीस्ट फॉर 4 to 5 times. ओके, इश्पेंद्र ने भी आपको सेम चीज बोला, प्रतिभा ने भी आपको सेम चीज बोला. प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड. ये सेशंस में आपको इसलिए करवाती हूँ ताकि आप रियलिटी का आपको पता चले. ओके, आप लोग जितना डिनाई करते हो ना चीजों को, डोंट रिबफ एनीवेयर. ओके, एंड डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज आपके एसटीज आपका सिलेक्शन करवाएंगे. दिस इज माय स्टेटमेंट टू यू ऑल. ठीक है,
चलो मिलते हैं, और भी काफी कुछ उन्होंने बताया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। एनीवेज, बाय बाय।